Hello dear students, this is Mansoor Mustafa. In this video, we'll discuss about the force. We'll discuss all the parameters related to the force. Also, we discuss what are the different types of forces and what are the effects of forces. So let's start with the introduction. Now, when we talk about force, so simple concept of force is that it's the push or pull on an object. It means के अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं, that means के you are applying a force on that object. This is the simple concept of force. Now, these are some real life examples where you can apply force. For example, if you are kicking a ball, if you are hitting something, or if you are opening a door, if you are lifting something, you are pulling, you are pushing, or if you are picking something, that means that you are in all these cases, you are applying a force on these objects. Now, as this force is a physical quantity, तो जो भी हम physical quantity study करते हैं, we must know whether that physical quantity is scalar or vector. So same way, now we'll see whether this force is scalar or vector. Now कैसे हमें पता चलेगा कि ये force scalar और vector होगी? So difference between scalar and vector is that अगर force को direction required होगी for its complete representation, that means के force is a vector quantity. लेकिन अगर ये without direction completely represented हो जाती है, means के there is no need for the direction, then it will be a scalar quantity. So let's consider this example. Okay, if this player wants to make a goal, तो he must know कि इसको बॉल को किस डायरेक्शन में किक करना है. मीन्स के ऐसा नहीं है ये किसी भी डायरेक्शन में बॉल को किक करे और जो बॉल है मीन्स के ही मेक अ गोल. इसको गोल करने के लिए he must kick this ball in a particular direction. Same like consider another example. ये आपने बहुत famous tale सुनी होगी about the falling apple in the physics. So अगर ये apple या कोई भी object जब fall करता है, it always falls towards the earth. Means कि अगर earth के surrounding object है, it always falls towards the earth. Same way, consider one more example. If this person wants to lift the load using this rope or using this string, so he must know कि इसको इस string के ऊपर किस direction में force apply करनी है. That means कि जो हमने example consider किए हैं, in all these examples, force is following a particular direction. मतलब ये कि force का effect को observe करने के लिए, उसके effect को enhance करने के लिए, और you can say उसको experience करने के लिए, there must be a particular direction. Just like जितने भी example हमने consider किए हैं, in those examples, force is applying in a particular direction. So if force is following a particular direction, that means that this force is a vector quantity. So just remember this thing कि जब भी आपने force को represent करना होगा, you have to consider it as a vector. Means कि आपको इसका magnitude भी required होगा और इसकी direction भी required. Now अब हम देखते हैं कि what this force can do. मतलब ये force कौन कौन से इसके effects होते हैं objects के ऊपर, क्या क्या ये force कर सकती है. Now very first effect of force is that it can change the state of the object. अब यहाँ पे state से मतलब ये state of the rest और state of the motion. मतलब ये कि let's consider कि अगर एक object है which is at rest and you want to move this object, तो आप किस तरह मूव करवा मीन्स के how you will make this object to move, that is possible by applying a force on the object. जब आप इसके ऊपर force apply करेंगे, only then this object will change its state from the rest to motion. Similarly, if there is an object which is moving and you want to stop that object, again you have to apply a force on that object. It means कि अगर आपने state change करनी है from rest to motion or from motion to rest, in both conditions you have to apply a force on the object. Next effect of force is that it can change the speed of the object. That means कि during your motion, अगर आप अपने object की, let's say if you are driving a vehicle, आप उस vehicle की speed को increase या decrease करना चाहते हैं, तो you have to apply a force on that object. Now
स्पीड का इंक्रीज या डिक्रीज होने का मतलब ये कि अगर आप स्पीड को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, दैट मीन्स कि यू आर चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिकॉज वेलोसिटी जो होता है इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज स्पीड। इट मीन्स कि अगर आप इस व्हीकल की स्पीड को चेंज करें तो एक्चुअली यू आर चेंजिंग द वेलोसिटी, और जो चेंज इन वेलोसिटी होता है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दैट मीन्स कि अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवानी हो तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, मीन्स के उसकी जो स्पीड है दैट विल चेंज। सिमिलरली अगर आपने ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करवानी है, नाउ जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि देखें जो वेलोसिटी होता है इट हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड उसका स्पीड होता है, दैट मींस कि उसको भी चेंज करवाने के लिए आपने फोर्स अप्लाई करनी है। सेम वे इफ यू वांट टू चेंज द डायरेक्शन, अगेन यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स। दैट मींस कि आपने अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने इन ईदर वे, आप एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा सकते हैं बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, और आप एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। सो दोनों कंडीशंस में आपको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करना। नाउ नेक्स्ट इफेक्ट इज दैट इट कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करवाना है तो उस शेप चेंज करवाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। नाउ दिस इज एग्जांपल, इससे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं हाउ अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ there is an other effect of force that is called a turning effect. That means के कुछ ऐसे objects होते हैं which are not movable object. Just like अगर आप इस door को देखें तो door is fixed at one end. There are other examples as well कि उन objects में उन object की इस तरह होते हैं कि they are fixed at one end. तो अगर आप इन ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन द ऑपोजिट एंड, तो व्हाट विल हैपन, दीज ऑब्जेक्ट्स जस्ट टर्न अराउंड एट अ पर्टिकुलर एक्सिस। तो ये जो टर्निंग होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, या अगर फॉर एग्जांपल आपको डोर को ओपन या क्लोज करना है, सो यू कैन प्रोड्यूस दिस टर्निंग अगेन बाय अप्लाइंग अ फोर्स. So these are the some effects of forces, means that this is what a force can do. So this is the summary of these all these effects of forces. So if you want to take snapshot, so you can, it will help you out in the future. Okay. अब हम आते हैं कि अगर हमने फोर्स को कैलकुलेट करना हो, सो हाउ कैन वी डू दैट? बिकॉज जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है there must be some equation, there must be some formula जिससे हम उस फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट फोर्स, तो फोर्स को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन. मींस के m मल्टीप्लाई बाय a का मतलब ये है m is the mass of the object and a is the acceleration produced in the object. That means कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की फोर्स फाइंड करनी है तो आपको उस ऑब्जेक्ट का मास पता होना चाहिए, एंड यू मस्ट नो कि हाउ मच एक्सेलरेशन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है. नाउ जस्ट कंसीडर कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट में, वो मास पे किस तरह डिपेंड करेगी. नाउ जस्ट कंसीडर कि देखें, अगर आप इस इक्वेशन में से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहें, सो दैट एक्सेलरेशन विल बिकम फोर्स डिवाइडेड बाय मास. दैट मींस के ये जो एक्सेलरेशन है ये फोर्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, वेयर एज दिस एक्सेलरेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मास. इसका मतलब ये होगा, अगर आप अप्लाइड फोर्स को या फोर्स को आप इंक्रीज करेंगे तो उस फोर्स के इंक्रीज करने से एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगी. बट अगर आप मास के ऑब्जेक्ट को इंक्रीज करेंगे बाय कीपिंग द फोर्स कांस्टेंट, मतलब आप सेम फोर्स अप्लाई करें ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक कंसीडर दीस टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर हैविंग द डिफरेंट मासेस and you are applying the same amount of force on both objects. So what will happen, जो ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉलर है it will have more acceleration. इसमें जो acceleration produce होगी that will be greater than the object having the larger mass. It means के mass के साथ acceleration inversely related होती है if you keep the applied force constant. Okay. Now अब देखिए ये जो equation है, according to this equation आप ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करते हैं
तो देयर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट, बिकॉज अगर ये एक्सेलरेशन नहीं होगी इट मीन्स के एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर जीरो है इट मीन्स के आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो भी जीरो हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसका इसके इस इक्वेशन से दिस इज व्हाट वी कैन प्रिडिक्ट राइट नाउ कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इट विल हैव सम मास, और उस मास के साथ उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। अब एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब है आप फोर्स अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। बट जस्ट थिंक अबाउट दोज ऑब्जेक्ट्स which are moving at a constant velocity, because ये तो हमें पता है कि there are so many objects which can move with a constant velocity. तो what about those objects? अगर वो constant velocity के साथ मूव करें that means कि there is no acceleration in those objects, because acceleration का मतलब होता है change in velocity. So अगर acceleration नहीं है what does that mean? क्या वो ऑब्जेक्ट विदाउट फोर्स मूव करें? बिकॉज इस इक्वेशन से तो हमें ये पता चल रहा है कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। सो व्हाट अबाउट दोज ऑब्जेक्ट जिनमें जीरो एक्सेलरेशन, जिनमें कोई भी एक्सेलरेशन है, हाउ इट्स पॉसिबल दैट दोज ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग? सो दिस इज जस्ट means there is a confusion in this situation. So just hold on for a while. At the end of lecture you will find the solution for this confusion by yourself. ठीक है, जब at the end जब आप सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे then you will be able to know कि what is the reason for this, कि जो object constant velocity के साथ move करें, how it's possible that force is being applied without being means के without acceleration, without producing the acceleration in those objects. ठीक है, now moving कि देखिए जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है it must have a standard unit जिसको हम कहते हैं SI unit. So if we talk about the SI unit of force, that is Newton. Newton was a scientist who worked on the force, who calculated on different types of forces. That's why the SI unit of force is Newton. अब अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज ड्राइव क्वांटिटी, सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि ये न्यूटन किसके इक्वल होता है, मींस के न्यूटन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 1 न्यूटन फोर्स कितनी होगी? सो जस्ट यू कैन ड्राइव फ्रॉम इट्स फार्मूला। देखिए क्या है फोर्स का फार्मूला, दैट इज मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। सो इफ यू वांट टू मेजर द फोर्स इन न्यूटन देन इट्स नेसेसरी कि जो रिमेनिंग क्वांटिटीज है मींस के मास एंड एक्सेलरेशन, they must also be in SI unit, because force का SI unit न्यूटन है। so ये न्यूटन आप तब ऑब्टेन कर सकते हैं जब आपके पास मास और एक्सेलरेशन भी SI यूनिट्स में हो। मास का SI यूनिट होता है किलोग्राम, whereas एक्सेलरेशन का है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। नाउ फ्रॉम दिस फार्मूला अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एक न्यूटन की जो फोर्स है वो कितना अमाउंट होगा, सो दैट इज यू कैन फाइंड आउट कि अगर एक ऑब्जेक्ट है having a mass of 1 किलोग्राम, तो अगर उस 1 किलोग्राम के मास में आप एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाते हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए उस 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, दैट अमाउंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड 1 न्यूटन. So you must remember how you can define a unit, because sometimes in exams you are being asked to define any particular unit. तो अगर आपको कोई भी यूनिट डिफाइन करने के लिए मींस के पूछा जाए तो सिंपली यू कैन डिफाइन इट फ्रॉम इट्स फॉर्मूला. ओके, चलिए, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट फोर्स. अब देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. मतलब ये कि अगर हम जो एग्जिस्टिंग फोर्सेस हैं अगर हम उनको देखें तो दोज फोर्सेस आर कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स या टू टाइप्स. ठीक है, कौन कौन से वो टाइप्स? देयर आर सम फोर्सेस दे आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेस एंड देयर आर सम अदर फोर्सेस दे आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स. मतलब कुछ ऐसी फोर्सेस हैं दे आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेस और कुछ ऐसी फोर्सेस हैं दे आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. अब ये जो कॉन्सेप्ट है कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का, दैट इज बेस्ड ऑन कि अगर जो फोर्स है मींस के कांटेक्ट फोर्सेस आर द फोर्सेस जिनका ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होना जरूरी है. विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट देयर इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस. मतलब जो ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है या जिस सोर्स से फोर्स अप्लाई हो रही है उस सोर्स का जिस ऑब्जेक्ट के पर फोर्स अप्लाई हो रही है उस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होना जरूरी है. ओनली देन
effect of these forces can be experienced. So those forces are called contact forces. Whereas on other hand, there are some forces, उनका जो effect है, it can be experienced without being in contact. मतलब जो force applying bodies हैं, उनका उस bodies के ऊपर जिनके ऊपर वो force apply कर रही हैं, उनके साथ contact में होना जरूरी नहीं है. So those forces are called non-contact forces. अब हम देखते हैं ये जो existing forces हैं, उनमें से what are the examples of the contact forces and what are the examples of non-contact forces. So starting with the contact forces, so the very first type of contact force is applied force, या फिर हम इसको कहते हैं muscular force. अब ये जो applied force होती है या muscular force, this is the type of force जो आप अप्लाई करते हैं यूजिंग योर बॉडी पार्ट्स. मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप अपने हैंड से, आप अपने फुट से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट फोर्स इज कॉल्ड अ मस्कुलर फोर्स. ठीक है, दीज आर द सम एग्जांपल्स कि अगर आप फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं यूजिंग योर बॉडी पार्ट्स, यूजिंग योर बॉडी स्ट्रेंथ, सो दैट फोर्स इज कॉल्ड एन अप्लाइड फोर्स और इट्स कॉल्ड अ मस्कुलर फोर्स. ठीक है. Now the next type of contact force is the normal force. अब normal force का मतलब ये होता है, देखिए फॉर एग्जांपल if you place any object on any surface, let's say अगर आप इस बुक को स्टेबल के ऊपर आप रख देते हैं, तो what will happen, देखिए जो भी objects which are surrounded by the earth, तो earth is continuously exerting a force which is called the force of gravity of earth, और उस force of gravity का particular name है, that is called weight. It means कि ये weight क्या होता है, it's a force of gravity of earth. We'll be having more discussion on the weight in upcoming chapters, but at this stage आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि this weight is the force of gravity of earth. ठीक है ना. So इस बुक के ऊपर continuously एक downward force act कर रही होगी, that is the weight of the object. तो इस weight के against ये जो surface होती है, it generates an opposite force to the this weight. That opposite force is called a normal force. मतलब ये जो normal force होती है, ये self generating force होती है, ये आप अप्लाई नहीं करते, ये खुद से जनरेट होती है और ये एक्ट करती है in the opposite direction of the gravity. मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी, ये उसके ऑपोजिट एक्ट करती है और ये फोर्स कहाँ से जनरेट होती है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. तो दैट फोर्स इज कॉल्ड अ नॉर्मल फोर्स. Now the next type of contact force is air resistance. Now air resistance क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट which is moving within the air, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो एयर में मूव कर रहा होता है, तो एयर क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टिव फोर्स जनरेट करती है. दैट रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस. जस्ट कंसीडर दिस एग्जांपल. if this paratrooper is falling towards the earth because of the gravity, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से अगर डाउनवर्ड मूव कर रहा है, अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, तो एट दैट सेम टाइम एयर रेजिस्टेंस क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड पुल करेगी, या यू कैन से एयर रेजिस्टेंस विल एक्ट इन अ upward direction which is the opposite to the direction of the motion of the object, या direction of the gravity. ठीक है ना. So that force which acts on the objects against मीन्स के ग्रेविटी या अगेंस्ट जो इनकी अप्लाइड फोर्स होती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस. नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज द टेंशन फोर्स. अब ये टेंशन फोर्स क्या होती है, दिस इज द फोर्स डेवलप्ड इन अ वायर, रोप और थ्रेड लाइक ऑब्जेक्ट्स. मीन्स के अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी रोप के साथ, किसी वायर के साथ, किसी थ्रेड के साथ या किसी रॉड के साथ जब हैंग करते हैं, जब पुल करते हैं, तो उस रोप या उस थ्रेड में जो फोर्स जनरेट होती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन फोर्स. फॉर एग्जांपल, इफ दीज टू पर्सन्स आर पुलिंग दिस रोप, तो इस रोप में मींस के जो फोर्स जनरेट होगी, दैट फोर्स इज टेंशन. सेम लाइक अगर फॉर एग्जांपल इफ दिस पर्सन इज पुलिंग दिस ऑब्जेक्ट यूजिंग दिस रोप. अब देखिए ये पर्सन जो है ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, मींस के इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, दे आर नॉट इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट. ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो अप्लाई कर रहा है यूजिंग दिस रोप. तो इस रोप में जो फोर्स जनरेट होगी, दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन. सेम लाइक अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हैंग करते हैं यूजिंग रॉड, यूजिंग स्ट्रिंग, तो उस स्ट्रिंग या उस थ्रेड में जो फोर्स जनरेट होती है,
that force is called the force of tension. Okay. Now next type of contact force is the frictional force. Now frictional force क्या होती है? It's very common type of force. ये वो force होती है अगर ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर मूव करता है तो वो सरफेस क्या करती है? उसकी मोशन को रेजिस्ट करती है. So that force which resists the motion of the object when object slides and when object moves on the surface, so that force is called force of फ्रिक्शन. ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है ये डिपेंड करती है जो सरफेसेस की मींस के ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर मूव कर रहा है उस सरफेस की जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जो रफनेस होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है. ठीक. और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है इसका जो इफेक्ट है अगर यू वांट टू एक्सपीरियंस के ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का इफेक्ट कितना है सो यू कैन एक्सपीरियंस जब आप ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे. मींस के जब ऑब्जेक्ट रेस में तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता. जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है देन यू विल एक्सपीरियंस हाउ मच इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इज ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर द सरफेस. उस सरफेस का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो इफेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना है. ठीक है ना. Now one more important thing about the friction is that it always acts in the opposite direction. आप अगर ऑब्जेक्ट को लेट से आप ईस्टवर्ड मूव करवाना चाहते हैं तो फ्रिक्शन एक्ट करेगी टुवर्ड्स द वेस्ट. इट ऑलवेज एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. और दूसरी बात ये कि आप अगर ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाह रहे हैं तो यू मस्ट अप्लाई अ लार्जर फोर्स देन द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. मतलब अगर जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस सरफेस की है आपने ऑब्जेक्ट को सरफेस के ऊपर मूव करवाने के लिए उससे लार्जर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. ओनली देन दैट ऑब्जेक्ट विल मूव. ठीक. नाउ लास्ट टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स इज द स्प्रिंग फोर्स. ये स्प्रिंग फोर्स क्या होती है? लेकिन जब आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उस स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन की वजह से स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स जनरेट होती है. दैट फोर्स इज कॉल्ड द spring force. So these are the some types of forces which are contact forces. अब हम देखते हैं कि what are the real life examples of the non-contact forces. So the very first type or very common type of non-contact force is the gravitational force. अब ये gravitational force होती क्या है? देखिए जब आप gravitational force means के when we listen about the gravitational force तो हमारे माइंड में ये चीज आती है कि this is the force of gravity or force attractional pull of the earth. But remember this thing कि ये जो gravitation force होती है this is not only the gravitational pull of the earth. ये वो force होती है कि जो भी object जिसका कोई ना कोई mass है it can exert this force of gravity and that object can also experience the force of gravity from other objects. मतलब ये कि यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास है चाहे वो स्मॉलर है चाहे लार्जर है they can exert उनके जो है they can exert a force of gravity on other objects. Similarly they can experience a force of gravity from other objects as well. किस तरह? Just consider the solar system. अब देखिए सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट्स हैं डेफिनेटली दे विल हैविंग अ मास. सो अगर हम कंपेयर करें इनकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी को सो जो अगर देखिए सबसे जो लार्जर प्लैनेट है दैट इज सन. तो अगर हम सन को कंपेयर करें अर्थ से तो सन की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी दैट विल बी लार्जर एज कंपेयर टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑब्जेक्ट का मास जितना ग्रेटर होगा उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी उतनी लार्जर हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई ये जो सन की जो ग्रेविटी है उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है ऑन द अर्थ. बट जो अर्थ की ग्रेविटी है उसका इफेक्ट सन पे बहुत ही कम होगा मींस के बिकॉज ऑफ द इट्स स्मॉलर मास एज कंपेयर टू द सन. सेम में अगर हम कंपेयर करें फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून और अर्थ को तो देखें अर्थ इज लार्जर एज कंपेयर टू द मून. तो इसका मतलब ये होगा कि अर्थ की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन मून है दैट इज लार्जर एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून ऑन द अर्थ. इसकी वजह से क्या होता है कि मून के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का अर्थ का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इफेक्ट होता है वो लार्जर होता है लेकिन अर्थ के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इफेक्ट जो मून की फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इफेक्ट होता है वो बहुत ही कम होता है. अब इस इफेक्ट को अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो जो ओशंस के अंदर टाइड्स प्रोड्यूस होती है those tides are produced because of the gravitational pull of the moon. So अब आप देखिए वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो वाटर्स को मून जो ओशन का जो वाटर है मून उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले
but there is a less amount of gravitational pull, so you can just experience those tides. ठीक है, इसी तरह जो अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट्स हैं उनका भी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ से उनके साथ कांटेक्ट होगा। किस तरह होगा कि अगर जो भी ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ या फिर सराउंडेड जो अर्थ से सराउंडिंग ये अर्थ के सराउंडिंग है, ठीक है ना, सो उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी अर्थ अपनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्ट कर रही होगी। सेम वे जो ऑब्जेक्ट्स हैं they are also exerting the force of gravity on the earth, but again जो ऑब्जेक्ट्स है उनका मास बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ अर्थ, तो इसकी वजह से अर्थ पे उन ऑब्जेक्ट की फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो इतना ज्यादा नहीं होता, या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, बट बिकॉज दोज ऑब्जेक्ट्स आर वेरी स्मॉलर एज कम्पेयर टू द अर्थ, तो उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अर्थ की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एज आई टोल्ड यू कि जो भी ऑब्जेक्ट जिसका भी कोई मास होगा it will exert a force of gravity on other objects. Similarly जो अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्ट कर रहे होते हैं, बट बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर मासेस ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी इतनी ज्यादा हम इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ठीक, now the next type of contact force is the magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज अगेन वेरी कॉमन टाइप ऑफ फोर्स, कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनके दरमियान जो फोर्स होती है मींस के जिससे ये ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट या मैग्नेट्स को सेम पोल को रिपेल करते हैं, तो दैट फोर्स इज अगेन अ टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्यों नॉन कांटेक्ट है? बिकॉज दिस इज नॉट नेसेसरी कि ऑब्जेक्ट का मैग्नेट के साथ कांटेक्ट होना जरूरी है। विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। सिमिलरली the last type of non-contact force is the electrostatic force. ये electrostatic force क्या होती है? It's the force between the charged particles. Just like जिस तरह magnets के north pole होते हैं, इसी तरह अगर किसी भी charged particle के दरमियान जो force होती है, that force is called an electrostatic force. अब इसकी जो real life examples हैं, अगर you might have experienced this as well, कि जब आप comb में अपने means के when you rub your comb in the hair, उसके बाद अगर आप इनको पीस ऑफ पेपर के करीब ले आते हैं तो पीस ऑफ पेपर्स आर बीइंग अट्रैक्टेड बाय द कोम्ब। सो ये जो अट्रैक्शन होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेम लाइक जो क्लाउड्स के अंदर रेनी सीजंस में जो लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। सो अगर हम इनको समराइज करें, सो दिस इज द समरी ऑफ दीज टू टाइप्स, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। Now we discuss कि देखिए until now जितनी हमने फोर्सेस डिस्कस किए हैं दे आर सिंगल फोर्सेस। जस्ट लाइक अगर आप फोर्स ऑफ टेंशन की बात करें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें, या फिर जो अप्लाइड या मस्कुलर फोर्स है, सिंगल फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट। बट अब हम देखते हैं इज इट पॉसिबल कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मोर देन वन फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली, मतलब सेम टाइम पे इज इट पॉसिबल कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई करें? So for that purpose, just consider a few examples. अब आप देखें, this is an object. इसके ऊपर there is a single force acting in, आप कह सकते हैं towards the east या towards the right. अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिंगल फोर्स है। Similarly, consider one more object. तो अब आप देखें on this object there are two forces acting. अब देखें यहाँ पे two forces acting and both forces are having the same magnitude and they are acting in the same direction. अब ये हमें कैसे पता चला कि these forces are having the same magnitude? So just recall from the topic of vectors, जब हमने वेक्टर स्टडी किया था, so at that time I told you कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की अगर आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, so that will depend on the length of that line. जिस लाइन से आप उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस जितनी उस लाइन की लेंथ होगी, that will represent the magnitude of the vector. So as force is a vector quantity, so अगर हम इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करें, इन दोनों जो लाइन से इन दोनों का लेंथ सेम है, दैट मींस कि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज आल्सो सेम, एंड इनकी जो एरो हेड है दैट इज आल्सो पॉइंटेड इन द सेम डायरेक्शन, दैट मींस कि दे आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड और दोनों की डायरेक्शन भी सेम। सिमिलरली कंसीडर दिस एग्जांपल। अब इसमें क्या हो रहा है, अगेन these two forces are acting in the same direction but the different मैग्नीट्यूड्स, इनके जो मैग्नीट्यूड्स होंगे वो डिफरेंट है, बिकॉज अगर आप लेंथ को देखें एक लार्जर एक स्मॉलर है, तो इट मींस कि इनके जो मैग्नीट्यूड्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। नाउ कंसीडर मोर एग्जांपल। अब आप देखें इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो रहा है,
there are two forces acting, but they are acting in the opposite direction. इससे पहले वाले जो केसेस हमने डिस्कस किए उनमें forces were acting in the same direction, but now there is an object, इसके ऊपर जो forces act कर रही है they are acting in the opposite direction. Again दोनों forces का जो magnitude है वो same. इसी तरह now in this example again there are two forces acting in opposite direction but with different magnitudes. Now this is one more example in which again there are total three forces. तीनों forces का magnitude same है. Out of three forces, two are acting in the same direction, whereas other force, the third force, that is acting in opposite direction. Now consider this example. There are four forces acting, और चारों forces का magnitude same है, but they are acting in opposite direction. अब यहाँ पर opposite direction में किस तरह act कर रही है? एक अगर eastward है तो दूसरी west. इसी तरह third one is on the north and last one is the south. So it means that these are the different cases in which force is being applied with different magnitude and different direction. अब देखिए ये जो केसेस हमने कंसीडर किए दे आर जस्ट अजम्पशंस. हमने अपनी मर्जी से कंसीडर कर लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई कर रही और हमने उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी अपनी मर्जी से चूज कर लिया. अब हम देखते हैं इज इट पॉसिबल इन रियल लाइफ के कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रही है साइमल्टेनियसली. बिकॉज अगर हम ये टॉपिक स्टडी करें तो वी मस्ट हैव एन आइडिया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग मल्टीपल फोर्सेस. मतलब एक से ज्यादा फोर्सेस स्टडी पर एक से ज्यादा फोर्सेस का इफेक्ट या उनको स्टडी करने का पर्पस क्या है. सो लेट्स कंसीडर फ्यू रियल लाइफ एग्जांपल्स. देखें इफ दिस व्हीकल, अगर हम इसके ऊपर कंसीडर करना चाहें हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग. सो जस्ट कंसीडर कि ये व्हीकल इट्स इनिशियली एट रेस्ट, ये मूव नहीं करी, स्टॉप है. सो नाउ अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि अगर ये व्हीकल स्टॉप है, व्हिच इज नॉट मूविंग, so is there any force which is acting on this vehicle? So just think about it. That force is the force of gravity, because ये ऑब्जेक्ट अगर सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ जो अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो इसके ऊपर एक्ट कर रही होगी. अब ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्ट कर रहा होगा, बट दैट इज नेग्लिजिबल, सो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे. ठीक है ना. अब एक तो फोर्स हो गई इस पे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. Now if we want to move this object, means कि अगर आप इस कार को ड्राइव करना चाहते हैं, so definitely for moving this object you will require some amount of force, because we just discussed कि अगर हमने ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करवानी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन तो हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. सो नाउ अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, सो यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन and that force is called the driving force. मतलब आपने इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, इस व्हीकल को ड्राइव करवाने के लिए आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करना है. नाउ ये दो फोर्सेस तो हो गए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर. जस्ट थिंक अबाउट इट, इज देयर एनी अदर फोर्स व्हिच विल एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट? यस, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. बिकॉज जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर मूव करेगा तो उस सरफेस में जो उस सरफेस की जो रेजिस्टिव फोर्स होगी दैट विल ओपोज द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. दैट मींस के जब ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा, जब ये व्हीकल मूव करेगी, तो देयर आर मेजर थ्री फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन दिस व्हीकल. कौन कौन सी फोर्सेज हो गई? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ड्राइविंग फोर्स एंड फ्रिक्शन. तो दैट मींस के जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, एट दैट टाइम these three forces are acting on this vehicle simultaneously. ठीक है. तो इट मींस कि दिस इज एन एग्जांपल ऑन व्हिच थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग. इसी तरह कंसीडर वन मोर एग्जांपल कि इफ दिस पैराट्रूपर इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. तो अब हम देखते हैं कि इस पैराट्रूपर के ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स दैट विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज इफ इट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ तो डेफिनेटली वो किस वजह से फॉल कर रहा होगा? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सो नाउ अब जो अदर फोर्सेस अगर हम इसके ऊपर कंसीडर करना चाहें, सो देखें दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, या किसी भी सरफेस के ऊपर नहीं है. दैट मींस कि इसमें फ्रिक्शन तो होगी नहीं, बिकॉज फ्रिक्शन तब जनरेट होती है जब ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर मूव करता है. सो अब हम देखते हैं कि इज देयर एनी अदर फोर्स व्हिच विल एक्ट ऑन दिस पैराट्रूपर. दैट फोर्स इज द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस. ठीक है. अभी हमने जब टाइप्स ऑफ फोर्सेस डिस्कस किए थे,
एट दैट टाइम वी डिस्कस्ड कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब एयर में मूव करता है तो एयर उसके मोशन के अगेंस्ट एक रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करती है, दैट रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस। दैट मीन्स कि अगर ये पैराट्रूपर फॉल कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी तो ब्रॉडर कैटेगरी वी से दैट, या फिर आप ये कहें कि देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन दिस पैराट्रूपर, दे आर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, now consider one more example. Now in this example there is an aeroplane which is flying in the air. अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी जब ये फ्लाई कर रहा होगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली देयर विल बी अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसके अलावा एयर रेजिस्टेंस भी होगी। नाउ इन दो फोर्सेस के अलावा देयर मस्ट बी एन अदर फोर्स which can drive this plane या which can move this plane in the forward direction, मतलब वो फोर्स जिससे प्लेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड अ थ्रस्ट। ये थ्रस्ट क्या होती है? दिस इज फोर्स जनरेटेड बाय द इंजन ऑफ द एरोप्लेन्स, जो फोर्स इस एरोप्लेन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाती है। नाउ जब ये एरोप्लेन मूव कर रहा होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस इन तीनों फोर्सेस के अलावा देयर इज एन अदर फोर्स व्हिच इज बीइंग जनरेटेड, दैट फोर्स इज कॉल्ड अ ड्रैग फोर्स। ये ड्रैग फोर्स क्या होती है? ये वो फोर्स होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव करता है। रिमेंबर दिस थिंग, फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड्स या गैसेस, ठीक है ना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड्स या गैसेस में जब मूव कर रहा होता है तो वो लिक्विड या गैस मींस वो जो फ्लूइड है उस ऑब्जेक्ट की मोशन को रेजिस्ट करता है बाय अप्लाइंग एन बैकवर्ड फोर्स। सो दैट बैकवर्ड फोर्स मींस के जो फोर्स ऑब्जेक्ट की मोशन के अगेंस्ट वो फ्लूइड जनरेट करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द ड्रैग फोर्स। दैट मीन्स कि जब ये एरोप्लेन फ्लाई कर रहा होगा इन द एयर तो देयर आर फोर फोर्सेस एक्टिंग। इसका मतलब ये हुआ कि रियल लाइफ में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम मोर देन वन फोर्सेस आर एक्टिंग। वी हार्डली फाइंड एन एग्जांपल कि जिसके ऊपर रियल लाइफ में कोई सिंगल फोर्स एक्ट कर रही हो। मीन्स के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, 2 3 4। तो अगर ये फोर्सेस एक्ट कर रही होती है तो अब हम देखते हैं कि इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो ओवरऑल इफेक्ट होगा वो हमें कैसे पता चलेगा? बिकॉज अगर ये सिंगल फोर्स होगी तो वी कैन इजीली फाइंड आउट कि उस फोर्स का इफेक्ट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होगा। बट अगर देयर आर मल्टीपल फोर्सेस तो अब हम देखते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल फोर्सेस हैं तो उन फोर्सेस का ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही हो तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उन फोर्सेस का जो इफेक्ट होगा, that effect will depend on the resultant force। अब ये resultant force क्या होता है? अगर आपको नहीं पता, if you don't know what is mean by resultant force, so just go to the video of the vectors। तो उस vector वाली वीडियो में I'll explain कि how what is that resultant force और इस resultant को हम किस तरह find out कर सकते हैं if we have more than one forces, ठीक है ना। Now moving back to the lecture। अब हम आते हैं कि देखिए वी आर डिस्कसिंग कि अगर एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं तो उन फोर्सेस का इफेक्ट फाइंड करने के लिए वी फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दोस फोर्सेस। नाउ जो रिजल्टेंट हम फाइंड करते हैं उस रिजल्टेंट के बेसिस पे हम इन मल्टीपल फोर्सेस को कैटेगराइज करते हैं टू ग्रुप्स में। किस तरह कैटेगराइज करते हैं? अगर आप रिजल्टेंट फाइंड करते हैं मींस इफ देयर आर 2 और 3 4 जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, यू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दोस फोर्सेस एंड यू आर गेटिंग अ नॉन जीरो वैल्यू। मतलब आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, कोई 5 है 6 है 10 न्यूटन, अगर आप मींस के इफ यू आर ओपनिंग, रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ पे बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपको वैल्यू पॉजिटिव मिले, बिकॉज वेक्टर के अंदर जो साइन होता है पॉजिटिव नेगेटिव ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। तो समटाइम्स आपको रिजल्टेंट नेगेटिव भी मिल सकता है, तो उसको भी मींस कि आपने कंसीडर करना है एज अ नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी भी दो या दो से ज्यादा फोर्सेस का रिजल्टेंट नॉन जीरो मिल रहा है तो दोज फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्सेस। मतलब ये कि उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी दोज फोर्सेस आर अनबैलेंस फोर्सेस। सिमिलरली अगर आप रिजल्टेंट फाइंड करते हैं एंड यू गेट अ जीरो रिजल्टेंट, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं आप उन फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करें एंड यू आर गेटिंग अ जीरो रिजल्टेंट। सो दैट मींस ये जीरो रिजल्टेंट ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं दे आर बैलेंस्ड फोर्सेस। सो अगेन दिस इज अ की पॉइंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द बैलेंस्ड फोर्स एंड व्हाट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सिंपली यू कैन से दैट
balanced forces are the forces which have a resultant force 0. Similarly, unbalanced are the forces which are having a resultant non-zero, या जिसको हम कहते हैं नेट रिजल्टेंट, मतलब कोई ऐसी वैल्यू जो कि नॉन-जीरो, कोई नंबर हो 2, 3, 5, तो दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, अब हम आते हैं जो एग्जांपल हमने कंसीडर किए थे, इनमें हम कैलकुलेट करते हैं कि इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही थी, are they balanced or unbalanced? So this was the first example on which one force was acting in a particular direction. So let's assume कि हम इस force का magnitude consider कर लेते हैं 10 न्यूटन। अब आप देखिए, अगर ये 10 न्यूटन एक डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, तो इट मींस कि ऑपोजिट डायरेक्शन में देयर इज नो फोर्स, सो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होगी दैट इज 0 न्यूटन। अब अगर हम इनका रिजल्टेंट फाइंड करें, सो रिजल्टेंट हम किस तरह फाइंड करते हैं? टू फोर्सेस या मोर देन टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए वी टेक वन एज अ पॉजिटिव एंड अदर एज अ नेगेटिव। तो अगर आप 10 को पॉजिटिव कंसीडर करें और 0 को नेगेटिव, तो 0 को नेगेटिव करने से 10 के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इट मींस कि इस कंडीशन में जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा दैट इज 10 न्यूटन। नाउ दिस 10 इज अ नॉन जीरो वैल्यू, दैट मींस कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप इन फोर्सेस को कंसीडर करें, सो दोज फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस। मतलब ये, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई सिंगल फोर्स अप्लाई होती है, तो उस सिंगल फोर्स के लिए आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि दैट सिंगल फोर्स इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स। सिंगल फोर्स कभी भी बैलेंस फोर्स नहीं हो सकती। ठीक हो गया। इसी तरह नाउ दिस वाज द सेकंड एग्जांपल। अब आप देखिए, इसमें टू फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अगेन दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम मैग्नीट्यूड। तो अगर हम इनका रिजल्टेंट फाइंड करें, सो दैट विल बी 20 न्यूटन, बिकॉज अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो रिजल्टेंट जो दोनों की डायरेक्शन दोनों को हम पॉजिटिव लेंगे, तो जो रिजल्टेंट आ जाएगा दैट विल बी 20 न्यूटन। तो दिस मींस कि अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब आते हैं थर्ड केस में। यहाँ पे भी देखें, वी हैव टू फोर्सेस, बट अब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, बट अगेन दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। सो अब अगर हम इनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, अगेन वी आर गेटिंग अ नॉन जीरो वैल्यू, तो दिस मींस कि दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब हम आते हैं इस ऑब्जेक्ट पे। अब देखिए, देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग, बोथ फोर्सेस आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर है, तो एक को आपने पॉजिटिव कंसीडर करना है, अदर को आपने नेगेटिव। तो जब आप इनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, नाउ यू विल गेट अ जीरो रिजल्टेंट। तो ये जीरो रिजल्टेंट ये इंडिकेट कर रहा है कि नाउ दीज फोर्सेस आर बैलेंस्ड फोर्सेस, मतलब इनका जो इफेक्ट होगा दैट इज बैलेंस्ड फोर्सेस। सिमिलरली, अगर आप इस एग्जांपल को कंसीडर करें, सो इन दिस एग्जांपल वी आर गेटिंग 5 न्यूटन एज अ रिजल्टेंट, दैट मींस इट्स एन केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। इसी तरह यहाँ पर भी आप देखें, दिस इज अ केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। और दिस एग्जांपल, अब यहाँ पर देखें, अगेन देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग, जिसमें से जो टू फोर्सेस हैं व्हिच आर एक्टिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, दे आर हैविंग द मैग्नीट्यूड्स ऑफ 5 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि जो ऑपोजिट डायरेक्शन की जो फोर्स है, वो है तो सिंगल फोर्स, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज द टोटल मींस के दैट इज द इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑन द राइट हैंड साइड। दैट मींस के इस केस में भी जो आप रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, तो अगर आप 10 न्यूटन को पॉजिटिव कंसीडर करें, तो उसकी ऑपोजिट दोनों को आपने नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। सो इन दैट केस अगेन यू विल गेट अ जीरो रिजल्टेंट फोर्स। सो दिस इज आल्सो अ बैलेंस्ड फोर्स। इसी तरह अब अगर हम कंसीडर करें, देखिए इससे पहले जितने एग्जांपल हमने कंसीडर किए थे, उसमें सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को कंसीडर करें। नाउ फॉर एग्जांपल, दिस ऑब्जेक्ट व्हिच इज हैविंग अ फोर फोर्सेस, टू हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, लेकिन चारों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। नाउ इन दिस केस, जब आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस गिवन हो, तो इनका रिजल्टेंट फाइंड करने का प्रोसीजर ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप हॉरिजॉन्टल का इंडिविजुअली कैलकुलेट करें रिजल्टेंट, वर्टिकल फोर्सेस का इंडिविजुअली, फिर आप टोटल रिजल्टेंट फाइंड करें। So in this case, horizontal forces का भी जीरो रिजल्टेंट है, वर्टिकल फोर्सेस का भी जीरो, दैट मींस कि ओवरऑल रिजल्टेंट भी जीरो ही होगा, एंड दिस इज केस ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस। इसी तरह कंसीडर दिस लास्ट एग्जांपल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए, जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट तो जीरो आ रहा है, बट जो वर्टिकल फोर्सेस है उनका जो रिजल्टेंट है दैट इज 2 न्यूटन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवरऑल जो इफेक्ट होगा वो कितना होगा, सो दैट विल बी 2 न्यूटन अपवर्ड। क्यों 2 न्यूटन अपवर्ड होगा? बिकॉज आप देखें, जो रिजल्टेंट आपको मिल रहा है वो 2 न्यूटन मिल रहा है, और किस डायरेक्शन में मिलेगा? जिस डायरेक्शन में आपने लार्जर फोर्स कंसीडर की। मींस अगर आप 7 को पॉजिटिव कंसीडर करें, 5 को नेगेटिव, तो जो रिजल्टेंट है वो भी पॉजिटिव आ रहा है। दैट मींस के आपका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज 2 न्यूटन अपवर्ड, या फिर अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डायरेक्शन इंडिकेटर लेते हैं, तो दैट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ।
So this is how we find the resultant of different forces. Now this is again example of unbalanced forces. Now अब हम आते हैं very important part of this topic, that is effect of these balanced and unbalanced forces. ये बहुत ही important है because इस अगर आप इस इन effects को, इन concept को अच्छी तरह समझ लेते हैं, so that they will help you out throughout the syllabus. ये जो concept है throughout the syllabus कहीं ना कहीं use हो रहे होते हैं. So इनको आपने बहुत अच्छी तरह समझना है कि जो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेज होती हैं इनका ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट्स ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस के अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं तो उन अनबैलेंस फोर्सेस का ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो सकता है. नाउ द वेरी फर्स्ट इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस फोर्स इज दैट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कैन बी मूव. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट. मतलब ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस में, जस्ट कंसीडर दिस कार, अगर ये कार रेस में है, आप इसको मूव करवाना चाहते हैं तो आपको इस कार के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. अब देखिए इससे पहले जब हमने फोर्सेस के इफेक्ट डिस्कस किए थे वहां पे सिंपली हमने कहा था कि आपने ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करवानी है तो आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. अब हम आते हैं पर्टिकुलरली कि आप कौन सी मतलब अगर आपके पास अनबैलेंस फोर्स है वो क्या इफेक्ट, उनके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं. सिमिलरली जो बैलेंस फोर्सेज है वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करवा सकते हैं. ठीक है ना. सो नाउ अगर हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. सो डेफिनेटली देयर विल बी अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस एज वेल, और इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए आपको ड्राइविंग फोर्स भी रिक्वायर्ड होगी. फॉर सिंपलिसिटी अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी को थोड़ी देर के इग्नोर कर दें, अगर हम इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर कर लें तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हैं, इस कार को ड्राइव करवाना चाहते हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो इट्स नेसेसरी कि आपने ये जो ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करनी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स. बिकॉज देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, इट्स द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द सरफेस. तो अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को इस सरफेस के ऊपर मूव करवाना है यू मस्ट अप्लाई अ फोर्स दैट इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस. तो देखिए जब आप ये दोनों फोर्सेस मींस के एक फोर्स तो आप अप्लाई करें विच इज ड्राइविंग फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो अब ये जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो मूव इस वजह से नहीं करेगा जितनी आप उसके ऊपर ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करें. ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा बिकॉज ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस. मतलब ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स या ओवरऑल फोर्स एक्ट करेगी. तो ऐसा देखें जब अभी हमने कहा, अभी हम इन द प्रीवियस फ्यू मिनट्स जब हम डिस्कस कर रहे थे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस, तो एट दैट टाइम वी डिस्कस्ड कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट करती हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्सेस का इफेक्ट होता है दैट डिपेंड्स ऑन द रिजल्टेंट फोर्स. दैट मींस कि जब ये कार मूव करेगी that will move on the influence of resultant force. जितना ज्यादा resultant force होगा मींस के जितना resultant force होगा उस हिसाब से इस कार की जो मोशन है वो चेंज होगी. ठीक है ना. अब जब ये कार मूव करने लगेगी that will be moving because of the resultant force is being applied on this car. अब ये तो हो गया फोर्स. अब अगर हम इस कार की मोशन को फर्दर हम एनालाइज करना चाहें, फर्दर हम इसको डिस्कस करना चाहें, तो इस मोशन के जो अदर पैरामीटर्स हैं, इसके जो इसकी स्पीड है, इसकी वेलोसिटी है, उसकी एक्सेलरेशन है, वो किस तरह वेरी करी होगी यूजिंग दीज रिजल्टेंट फोर्स. तो अब हम उसको एनालाइज करते हैं यूजिंग ग्राफिकल मेथड और जो इनके फार्मूला है. अब आप देखिए ये जो फार्मूला है फोर्स का, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है that will depend या that can be calculated using this formula. ये जो फोर्स का फार्मूला है F equals to mass multiplied by acceleration. तो इसका मतलब है ये जो रिजल्टेंट फोर्स, जिस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, तो ये रिजल्टेंट फोर्स डिपेंड करेगा इस फार्मूला. क्या है इस फार्मूला में? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब आप देखिए कार का जो मास है वो तो कांस्टेंट रहेगा, चाहे कार मूव कर रही है चाहे नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये होगा मास तो कांस्टेंट है. नाउ अदर थिंग इज दैट अगर हम ये कह रहे हैं कि ये जो कार है विच इज मूविंग विद रिजल्टेंट फोर्स, दैट मींस कि इस रिजल्टेंट फोर्स की देयर मस्ट बी सम वैल्यू. ये रिजल्टेंट फोर्स नॉन जीरो होना चाहिए, ओनली देन दिस ऑब्जेक्ट विल मूव. तो अगर ये नॉन जीरो फोर्स है और मास कांस्टेंट है, दैट मींस के इसमें जो एक्सेलरेशन होगी ऑब्जेक्ट की वो भी नॉन जीरो होनी चाहिए. नॉन जीरो एक्सेलरेशन का मतलब ये है देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड. इसका मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा मींस कि आप ऑब्जेक्ट आपने स्टेट चेंज की फ्रॉम
रेस टू द मोशन, तो जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा तो इस ऑब्जेक्ट में एट एवरी पॉइंट देयर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है? दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी में क्या होता है? दो चीजें होती हैं, स्पीड एंड डायरेक्शन। इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होगी जब कार की वेलोसिटी चेंज होगी। अब वेलोसिटी या तो वो स्पीड के चेंज होने की वजह से हो सकती है या फिर डायरेक्शन की वजह से। नाउ इन दिस केस हमने ये कंसीडर किया है कि डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, मींस के कार इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये होगा कि एट एवरी पॉइंट कार की जो स्पीड है दैट विल कीप चेंजिंग। अगर ये स्पीड चेंज नहीं होगी तो कार के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का ना होने का मतलब है उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स भी एक्ट नहीं करेगी। तो जब रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब है आप कार को मूव नहीं करवा सकते। अगर आप कार को मूव करवाएंगे तो आपने उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवानी है, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब ये है उस कार की जो स्पीड है दैट विल कीप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब ये इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है, बट फॉर सिंप्लिसिटी हम ये कंसीडर कर लें कि स्पीड इज इंक्रीजिंग। ठीक है ना? अब हम देखते हैं कि अगर ये स्पीड इंक्रीज होगी तो हाउ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ विल लुक लाइक। अब स्पीड टाइम ग्राफ हम क्यों ले रहे हैं? उससे हमें इस कार के जो बिहेवियर है, इसकी जो मोशन का बिहेवियर है, उसको एनालाइज करने में आसानी होगी। बिकॉज ग्राफिकल एनालिसिस से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है उसको आप, या किसी भी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके जो बिहेवियर होता है आप उसको स्टडी कर सकते हैं। नाउ इट मींस कि अगर कार की स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है तो इट्स स्पीड टाइम ग्राफ विल लुक लाइक दिस। रिमेंबर दिस थिंग कि दिस वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी व्हिच इज द स्पीड। तो इट मींस कि एक्चुअली दिस इज द स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ ये होगा कि कार की स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही होगी। नाउ देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड एट दिस पॉइंट कि देखिए स्पीड हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्पीड एक कांस्टेंट रेट के साथ है? ये तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड इंक्रीज तो हो रही है लेकिन एक कांस्टेंट रेट के साथ, बिकॉज इफ यू आर गिविंग अ डायगोनल स्ट्रेट डायगोनल लाइन दैट रिप्रेजेंट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। बट ये कैसे हमें पता चला? इट माइट बी पॉसिबल ये स्पीड एक वेरिएबल रेट के साथ, मींस के इस तरह भी हो सकता है कि स्पीड पहले कम हो, मींस के उसमें जो वेरिएशन आ रही है वो पहले कम हो, जैसे जैसे टाइम पास हो उसमें वेरिएशन ज्यादा होती जाए। या फिर ये भी तो हो सकता है कि इनिशियली जो वेरिएशन आ रही है वो कम हो, जैसे जैसे टाइम पास होता जाए उसमें वेरिएशन जो है वो ज्यादा होती जाए। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कंडीशंस हैं या ये जो पॉसिबिलिटीज हैं कब कब हो सकती है, मींस के कब ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड एक कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज होगी, कब ऐसा होगा कि उसकी जो स्पीड में जो वेरिएशन आएगा वो पहले से ज्यादा होगा, मींस के जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उसमें स्पीड की वेरिएशन इंक्रीज होती जाएगी, या फिर ऐसे कब होगा कि उसमें वेरिएशन डिक्रीज हो जाएगी। सो नाउ ये जो वेरिएशन है दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर कार के अंदर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, या फिर आप ये कहें कि उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो एवरी पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब ये होगा उसमें जो वेरिएशन आएगी वेलोसिटी में या स्पीड में वो भी सेम होगी। तो इसका मतलब ये है कि दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स कि अगर कार में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, और एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रही है? दैट डिपेंड्स ऑन द जो रिजल्टेंट फोर्स है। इसको भी हम थोड़ा बाद में फर्दर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगी दैट मींस के कार के अंदर जो एक्सेलर स्पीड इंक्रीज होगी वो भी एक कांस्टेंट रेट के साथ। रिमेंबर दिस थिंग, स्पीड चेंज होगी चाहे वो कांस्टेंट रेट के साथ चेंज हो चाहे वेरिएबल रेट के साथ हो। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है, देखिए एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर फॉर एग्जांपल व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी एट दैट टाइम लेट्स से इन 1 सेकंड कार की जो स्पीड है वो चेंज हुई फ्रॉम 0 मीटर पर सेकंड टू लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन आगे जाके फ्रॉम 10 टू 11 लेट्स से मतलब 10 टू 11 जब आपने ऑब्जर्व किया तो दैट स्पीड हैज चेंज्ड फ्रॉम लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड टू 15 मीटर पर सेकंड, मतलब अब एक सेकंड के अंदर 5 मीटर पर सेकंड की वेरिएशन आ गई। सो अगर इस तरह वेरिएशन आ रही है सो दैट वेरिएशन इज रिप्रेजेंटिंग कि एक्सेलरेशन इज इंक्रीज, ठीक है ना? सिमिलरली ये जो लास्ट वाली सिचुएशन है ये कब आकर होगी? अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब ये कि लेट्स से व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी आफ्टर 2 सेकंड्स जब आपने अपनी स्पीड मेजर की, let's say at that time your speed was changed from 0 meter per second to let's say 4 meter per second, बट जब आप कुछ देर बाद ऑब्जर्व कर रहे हैं लेट्स से अगेन फ्रॉम 10 टू 11 सेकंड्स, तो 10 टू 11 या 10 टू 12 सेकंड्स, तो इस सेम इंटरवल के अंदर मींस के 2 सेकंड्स का जो सेम इंटरवल है इसके अंदर जो वेरिएशन आ रही है नाउ इट्स लेट्स से फ्रॉम 15 टू 20,
इसका मतलब है जस्ट आपके पास जो वेरिएशन नॉट 15 to 20, आप ये कह लें 15 to 16, मींस के 1 मीटर पर सेकंड की वेरिएशन आ रही है। सो दिस 1 मीटर पर सेकंड वेरिएशन इज रिप्रेजेंटिंग दैट स्पीड जो इंक्रीज हो रही है, अब उसमें जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग है वो डिक्रीज हो रहा है। तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग के डिक्रीज होने का मतलब है उसमें जो एक्सेलरेशन होगी वो भी डिक्रीज होगी। रिमेंबर दिस थिंग कि दिस इज अ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना विद द डिसेलरेशन। डिसेलरेशन इज समथिंग एल्स। यहाँ पे ऑल कंडीशन में हम ये कंसीडर कर लें ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, बट उसका जो इंक्रीजिंग रेट है वो वेरी कर रहा है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो केसेस हमने डिस्कस किए कि कहीं पे एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, में से कहीं पे कांस्टेंट है, कहाँ इंक्रीज हो रही है, कहाँ डिक्रीज, हाउ दिस एक्सेलरेशन रिलेट्स मींस कि हाउ इट विल डिपेंड ऑन द रिजल्टेंट फोर्स। मतलब ये जो एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है बिकॉज ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, तो ये रिजल्टेंट फोर्स पर ये एक्सेलरेशन किस तरह डिपेंड करेगी। सो नाउ देखिए दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द रिजल्टेंट फोर्स। तो इस फार्मूला में जो मास है दैट इज कांस्टेंट, ठीक है ना, वो तो किसी भी सूरत में चेंज नहीं हो रहा, चाहे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चाहे उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मास इज कांस्टेंट। तो अगर हम ये करें मास कांस्टेंट है, तो इन फर्स्ट केस जिसमें एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मतलब इस केस में क्या था, एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट थी, स्पीड में जो वेरिएशन आ रहा था कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज आ रहा था। तो अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अप्लाई रिजल्टेंट फोर्स अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कीपिंग द मास कांस्टेंट, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगी that will also remain constant। इसका मतलब ये होगा कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह मूव कर रहा है, उसमें जो वेलोसिटी है, उसमें स्पीड में जो वेरिएशन आ रही है वो एक कांस्टेंट रेट के साथ वेरिएशन आ रही है, तो ये तब पॉसिबल होगा अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है थ्रू आउट द जर्नी वो सेम हो। रिजल्ट, रिमेंबर दिस थिंग, रिजल्टेंट फोर्स नॉट द अप्लाइड फोर्स। मतलब ऐसे हो सकता है किसी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल जब आपने चलना स्टार्ट किया, आपने अप्लाइड फोर्स, योर अप्लाइड फोर्स इज लेट्स से 10 न्यूटन, तो उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी लेट्स से वो 2 न्यूटन है, तो इट मींस कि उस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ गई, 8 न्यूटन। इसी तरह थोड़ा मूव करने के बाद लेट्स से अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कुछ इंक्रीज हो गई, लेट्स से वो 2 न्यूटन से लेट्स से 6 न्यूटन पे आ गई या 3 न्यूटन पे आ गई। तो 3 न्यूटन का मतलब ये कि आपने फिर ड्राइविंग फोर्स को भी उस हिसाब से इंक्रीज कर दिया, आप अपनी ड्राइविंग फोर्स को आपने इंक्रीज कर दिया 8 से जो है 10 से 11 पर, 10 से 11 पर कर दिया, तो अगेन जो आपके पास रिजल्टेंट आएगा 11 माइनस 3, सो दैट विल बी 3 न्यूटन। तो इसका मतलब ये है अगर थ्रू आउट द जर्नी रिजल्टेंट फोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, फॉरवर्ड मीन्स के जो आपकी ड्राइविंग फोर्स है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उनमें वेरिएशन आ सकती है, बट जो मोशन है वो डिपेंड कर रही है रिजल्टेंट फोर्स पे। तो अगर थ्रू आउट द जर्नी रिजल्टेंट फोर्स सेम है, तो ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो भी कांस्टेंट होगी, और मींस के उसमें जो वेलोसिटी में स्पीड में वेरिएशन होगी वो भी एक कांस्टेंट रेट के साथ होगी। सेम लाइक जो सेकंड वाला केस था जिसमें एक्सेलरेशन वाज इंक्रीजिंग, तो अब आई होप कि आपको कांसेप्ट मिल गया होगा कि अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है दैट मींस के यहाँ पर क्या होगा कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी इंक्रीज हो जाए, तो इस कंडीशन में आपको इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलेगा। रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीज होने का मतलब ये कि जो डिफरेंस आ रहा है आपके पास फॉरवर्ड जो आपके पास ड्राइविंग और फ्रिक्शनल फोर्स का वो ज्यादा हो जाए। लेट्स से आप जब ने चलना स्टार्ट किया, आपने अप्लाई की ड्राइविंग फोर्स 10 न्यूटन की, लेट एट दैट टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स थी वो 2 न्यूटन थी, तो आपके पास रिजल्टेंट आ गया 8 न्यूटन। लेकिन थोड़ा आगे चल के फ्रिक्शन फोर्स तो वही सेम है, लेकिन आपने अपनी ड्राइविंग फोर्स को इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 10 to 12 न्यूटन। तो जब आप ड्राइविंग फोर्स को इंक्रीज करेंगे और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेम है, तो इसका मतलब अब जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस विच इज द रिजल्टेंट फोर्स अगर वो इंक्रीज होगा, तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी दैट विल बी एन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है ना। सिमिलरली थर्ड केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है, तो ये एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगी, अगर आपके पास जो रिजल्टेंट है उसमें उसका जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाए। तो जैसे ही रिजल्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होता जाएगा इट मींस कि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो भी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट केस कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को बेस से मूव करवाना हो तो हाउ कैन यू मूव, और उसकी जो रिजल्टेंट फोर्स उसमें जो एक्सेलरेशन होगी वो किस किस तरह वेरी करे, मतलब ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर है वो किस तरह वेरी करे। ठीक है। नाउ अब हम आते हैं सेकंड इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस फोर्स, दैट इज मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी स्टॉप्ड। सो देखें
अगर हम इसको समराइज करें तो सिंपली वी कैन से दैट या तो आप ऑब्जेक्ट रेस में था, आपने उसको मूव करवाया यूजिंग अनबैलेंस फोर्स। अब हम आते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, again you can stop that object by applying unbalanced force। अब हम देखते हैं होगा क्या। now अगर ये ऑब्जेक्ट मूविंग है तो डेफिनेटली these three forces will be acting on the object, or sorry these two forces, और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा बिकॉज ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो देखिए अगर आपने ऑब्जेक्ट को जब स्टॉप करवाना होता है तो यू अप्लाई अ ब्रेकिंग फोर्स। जिस तरह आपने ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए आपने ड्राइविंग फोर्स अप्लाई की, आपको ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स स्टिल विल एग्जिस्ट, ठीक है ना, जहां पर भी फ्रिक्शन, बिकॉज आप स्टिल यू आर मूविंग ऑन द सरफेस, तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रही थी, यहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रही थी। विद द डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर आपने अप्लाई की थी ड्राइविंग फोर्स, अब आप अप्लाई करें ब्रेकिंग फोर्स, तो ब्रेकिंग फोर्स इज एक्चुअली एन ओपोजिंग फोर्स। मींस के ड्राइविंग फोर्स आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे थे, अब आपको ब्रेकिंग फोर्स बैकवर्ड फोर्स, बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब उस फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो होगा बैकवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स के अब आपने बैकवर्ड फोर्स को इंक्रीज कर दिया, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने ड्राइविंग फोर्स को कम कर देंगे, बिकॉज अब आप ब्रेक करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आपकी ड्राइविंग फोर्स जो होगी वो रिड्यूस होती जाएगी, या आप ये कहें उसको आपने खत्म कर देना है। सो अगेन आप देखें यहाँ पर भी फोर्सेस में डिफरेंस था, बैक फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, तो यू आर गेटिंग ए रिजल्टेंट फोर्स। सेम लाइक अब भी क्या होगा, आपने ड्राइविंग को खत्म कर दी लेकिन स्टिल यू हैव इंक्रीज द ब्रेकिंग फोर्स, तो स्टिल यू विल हैव सम रिजल्टेंट फोर्स, या यू कैन से you will require some resultant force to stop the object। मींस कि आपको ऑब्जेक्ट को स्टॉप करवाने के लिए आपको कुछ ना कुछ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स व्हिच इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स, तो आपको ऑब्जेक्ट को स्टॉप करवाने के लिए भी सम अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। नाउ एज दिस इज अ केस ऑफ ब्रेकिंग, जब ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया, स्टॉप होने के बाद दोनों जो ब्रेकिंग और जो ड्राइविंग फोर्स है वो रिमूव हो जाती है। मींस कि योर पर्पस इज ऑब्टेन, आपका पर्पस क्या था, ऑब्जेक्ट मोशन में था, उसको आपने स्टॉप। नाउ ये जो केस है कि जिसमें हम ऑब्जेक्ट को स्टॉप करवा रहे हैं, तो अब हम इसको थोड़ा सा फर्दर एनालाइज करते हैं कि इसमें जो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होगा मोशन का, जिस तरह हमने पहले वाले केस में स्टडी किया था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का बिहेवियर किस तरह वेरी करेगा। नाउ अगेन यूजिंग द स्पीड टाइम ग्राफ, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस ड्यूरेशन हम देखते हैं क्या होगा। देखिए ऑब्जेक्ट मूव किस वजह से करेगा, अगर ड्राइविंग फोर्स होगी ग्रेटर देन बैकवर्ड। अब मैंने यहाँ पे जनरल टर्म यूज किया बैकवर्ड का, अब ये फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकती है, या फिर हम इसको जब हम आगे जाएंगे तो वो ड्राइविंग फोर्स भी उसमें बैकवर्ड में आ जाएगी, ठीक है ना। मीन्स कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो यू मस्ट अप्लाई अ फोर्स ग्रेटर देन द बैकवर्ड फोर्स। और ऑब्जेक्ट किस वजह से मूव करेगा, ड्यू टू द रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द ड्राइविंग फोर्स, मतलब यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द ड्राइविंग फोर्स। और ऑब्जेक्ट की स्पीड में क्या वेरिएशन आएगी, स्पीड विल कीप इंक्रीज। अब देखें अगेन ये स्पीड कांस्टेंट रेट के साथ भी इंक्रीज हो सकती है, वेरिएबल रेट के साथ, बट फॉर सिंपलिसिटी हम ये अज्यूम करें कि स्पीड इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट, ठीक है ना। अब ये तो होगा ड्यूरिंग ड्राइविंग। अब हम देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक, जब आप ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो अब क्या होगा। लेकिन जब आपने ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई की, दैट मींस कि अब आपने क्या किया, जो बैकवर्ड फोर्स है उसको ग्रेटर कर दिया ड्राइविंग फोर्स से। ड्राइविंग फोर्स बिकॉज अब आपको रिमूव करनी है, उसको डिक्रीज करना है बिकॉज यू वांट टू स्टॉप। अब आपने क्या किया, अब आपने बैकवर्ड फोर्स को ग्रेटर कर दिया। लेकिन अगेन आप देखें मींस के यहाँ पर भी ऐसा हो रहा था, एक फोर्स लार्जर एक स्मॉलर, यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है, एक लार्जर एक स्मॉलर। तो अगेन दोनों फोर्सेस में अगर डिफरेंस है तो देयर विल बी अ रिजल्टेंट फोर्स, लेकिन अब इस रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी टुवर्ड्स द ब्रेकिंग फोर्स, बिकॉज रिजल्टेंट फोर्स डिपेंड करती है जिस डायरेक्शन में लार्जर फोर्स एक्ट कर रही है। तो अब देखिए प्रीवियस केस में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उस कंडीशन में ड्राइविंग फोर्स लार्जर थी, तो रिजल्टेंट वाज टुवर्ड्स द ड्राइविंग फोर्स। यहाँ पे बैकवर्ड फोर्स लार्जर है तो रिजल्टेंट विल मूव, रिजल्टेंट विल एक्ट टुवर्ड्स द बैकवर्ड फोर्स। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छी तरह आपने समझना है। क्या है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखें यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स तो है टुवर्ड्स द बैकवर्ड फोर्स, लेकिन इससे ऑब्जेक्ट बैकवर्ड मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है दैट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। ऐसे नहीं है कि आपने बैकवर्ड फोर्स को ग्रेटर कर दिया, ऑब्जेक्ट उसी स्पीड के साथ वापस चला जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। अब क्या होगा, जितनी उसने मैक्सिमम स्पीड ऑब्टेन करनी थी उसने कर ली, जैसे ही आप बैकवर्ड फोर्स को ग्रेटर कर देंगे तो ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, इसकी जो स्पीड है अब वो रिड्यूस होना स्टार्ट होगी। अब ये रिड्यूस होती जाएगी बिकॉज दिस इज अ ब्रेकिंग फोर्स, दैट मीन्स कि हमने इस स्पीड को जीरो पर लेकर आना।
तो जैसे ये स्पीड 0 पर आ गई, नाउ हमने जो हमारी ड्राइविंग और ब्रेकिंग फोर्स थी, हमने उनको रिमूव कर देना है, ऑब्जेक्ट विल स्टॉप। तो ये होगा ऑब्जेक्ट का बिहेवियर जब आप ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करेंगे फ्रॉम द ऑफ द ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब इस केस को हम थोड़ा सा फर्दर देख लेते हैं कि देखिए ये तो है ब्रेकिंग फोर्स, एक स्पेशल केस है जिसका पर्पस ही ऑब्जेक्ट को ब्रेक करवाना है। अब हम देखते हैं कि व्हाट विल हैपन अगर हम इस ब्रेकिंग फोर्स की जगह पे एक जनरल टर्म यूज करें या जनरल फोर्स अप्लाई करते हैं, बैकवर्ड फोर्स। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब अगर आप ड्यूरिंग मोशन आप बैकवर्ड फोर्स को ग्रेटर कर देते हैं, उसको इंक्रीज कर देते हैं फ्रॉम योर ड्राइविंग फोर्स, तो अब उस बैकवर्ड फोर्स के इंक्रीज करने से ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। सो अगेन लेट्स मींस के कंसीडर दिस सेम स्पीड टाइम ग्राफ। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कंसीडर करते हैं जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे तो ये अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो क्यों मूव कर रहा होगा, बिकॉज उसकी फॉरवर्ड फोर्स उसकी बैकवर्ड फोर्स से ग्रेटर होगा। अब हम यूज करें एक जनरल बैकवर्ड फोर्स, नॉट ओनली द ब्रेकिंग फोर्स, कोई भी बैकवर्ड फोर्स हो सकती है, ठीक है ना। अब ये बैकवर्ड फोर्स अगर फॉरवर्ड इससे ग्रेटर होगी, ओनली देन ऑब्जेक्ट विल मूव, और जब वो मूव करेगा तो कंटिन्यूअसली जितनी देर के लिए फॉरवर्ड फोर्स ग्रेटर होगी उसकी स्पीड इंक्रीज होती रहेगी। नाउ आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि बैकवर्ड फोर्स ग्रेटर हो जाती है फॉरवर्ड से। सो जैसे ही बैकवर्ड फोर्स ग्रेटर होगी फॉरवर्ड से, तो व्हाट विल हैपन, जिस तरह ब्रेकिंग फोर्स में हो रहा था, ऑब्जेक्ट ने जितनी मैक्सिमम स्पीड ऑब्टेन की थी, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट डिसिलरेटिंग। डिसिलरेटिंग का मतलब ये है कि अब इसकी जो स्पीड थी वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये स्पीड रिड्यूस होती रहेगी, फाइनली इट विल बिकम टू जीरो। लेकिन इन केस ऑफ ब्रेकिंग फोर्स हमारा पर्पस ही ऑब्जेक्ट की स्पीड को जीरो करना था, तो जब ये जीरो हो गई हमने ब्रेकिंग फोर्स को रिमूव कर दिया, ऑब्जेक्ट की मोशन स्टॉप हो गई। बट यहाँ पर हमारा पर्पस स्टॉप करवाना नहीं है, हमारा पर्पस ये ऑब्जर्व करना है कि अगर ये स्पीड जीरो होने के बाद स्टिल बैकवर्ड फोर्स अगर ग्रेटर हो फॉरवर्ड फोर्स से, देन व्हाट विल हैपन टू द ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा कि देखें जब ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो हो गई और बैकवर्ड फोर्स इज स्टिल ग्रेटर देन द फॉरवर्ड फोर्स, तो अब क्या होगा, दिस ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ये होगा कि अब ऑब्जेक्ट वो जीरो पे आके रुकेगा नहीं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अपनी स्पीड को दोबारा कंटिन्यू करेगा। कैसे कंटिन्यू करेगा, इसकी स्पीड दोबारा जीरो से इंक्रीज होगी, लेकिन अब ये जो इंक्रीज होगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी हम इसको लेंगे नेगेटिव, बिकॉज वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर है, तो वेक्टर में मींस कि अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करें तो आपने ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव कंसीडर करा। सो दिस इज द इफेक्ट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यू माइट एक्सपेक्ट इन द एग्जाम्स। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि अगर ड्यूरिंग मोशन व्हाट हैपेंस इफ द बैकवर्ड फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन द फॉरवर्ड फोर्स। तो ये सुनते ही हमारे फौरन ज़हन में ये आता है, देखिए ऑब्जेक्ट तो उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में लार्जर फोर्स एक्ट करती है। तो इसका मतलब है अगर आप ड्यूरिंग मोशन बैकवर्ड फोर्स को इंक्रीज कर देंगे, ऑब्जेक्ट उसी टाइम बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा। मींस के दिस इज द पॉइंट। अगर आप इस पे देखें बैकवर्ड फोर्स आपने इस पॉइंट पर इंक्रीज कर दी, लेकिन रिमेंबर दिस थिंग कि जब आप बैकवर्ड फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो वेरी फर्स्ट इफेक्ट ऑब्जेक्ट का ये नहीं होगा कि वो बैकवर्ड मूव करे। फर्स्ट इफेक्ट ये होगा कि ऑब्जेक्ट डिसिलरेट करेगा। जब उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, इफ यू स्टिल कंटिन्यू द बैकवर्ड मींस के स्टिल अगर बैकवर्ड फोर्स ग्रेटर है, देन इट विल स्टार्ट मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, चलिए अब हम आते हैं द थर्ड इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस फोर्स, दैट इज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड। सो अगेन मींस के ड्यूरिंग मोशन अगर आपने ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो यू हैव टू अप्लाई अ अनबैलेंस फोर्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्रीवियस दो केसेस में आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा हम इसको फर्दर देख लेते हैं कि किस तरह आप स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए स्पीड को अगर आपने इंक्रीज करना है, तो फ्रॉम प्रीवियस केसेस वी ऑब्जर्व कि स्पीड का जो इंक्रीज होना या डिक्रीज होना डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पर। मींस कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मींस के ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होती रहेगी। अगर आपने उसको इंक्रीज करना है तो आपने उस एक्सेलरेशन में वेरिएशन लानी है। अब वेरिएशन लाने का मतलब ये वेरिएशन किस पर डिपेंड करती है, ऑन द फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स। अगर आपने फॉरवर्ड फोर्स को ग्रेटर करेंगे बैकवर्ड फोर्स से, तो स्पीड क्या होगी, कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है ना। दिस वाज द केस। देखें जब आप मूव कर रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, एट दैट टाइम योर फॉरवर्ड फोर्स वाज ग्रेटर, तो जितनी देर के लिए फॉरवर्ड फोर्स ग्रेटर थी स्पीड वाज इंक्रीज।
सेम वे अगर आपने इस चीज को डिक्रीज करना है, सो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, आपने अपनी फॉरवर्ड फोर्स को बैकवर्ड से कम कर देना है। मींस कि आपने क्या करना है, बैकवर्ड फोर्स को जब आप इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, आपकी स्पीड डिक्रीज होगी। जितनी आपने डिक्रीज करनी उतने टाइम के लिए आप अपने बैकवर्ड फोर्स को इंक्रीज करके रखें तो स्पीड क्या होती है कि रिड्यूस होती है। So this is how you can vary या you can change your speed during the motion. Okay. Now next effect of the unbalanced force is that direction of the object can be changed. Means के during your motion अगर आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करवाना चाहते हैं, so again you have to apply an unbalanced force. अब देखते हैं कि ये डायरेक्शन चेंज होगी कैसे। देखिए डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर आपने स्पीड चेंज करनी है तब भी आपने वेलोसिटी में चेंज लाना होगा, या फिर अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप अपनी ड्यूरिंग मोशन अगर आप अपनी वेलोसिटी की जो अपनी ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन चेंज करें, तो डायरेक्शन को चेंज होने के लिए अगेन यू हैव टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, दैट इज एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करवाना चाहते हैं तो यू हैव टू प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन इन दैट ऑब्जेक्ट। और एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है, व्हेन देयर इज सम नेट फोर्स एक्टिंग। नेट फोर्स का मतलब है नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग। नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है अनबैलेंस फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करवानी है तो उस डायरेक्शन चेंज करवाने के लिए आपको एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोड्यूस करवानी पड़ेगी। और एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगी, जब ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नॉन जीरो फोर्स एक्ट करेगी। तो दैट्स व्हाई वी से दैट अगर आपने ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करवानी है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, सॉरी आपने डायरेक्शन चेंज करवानी है इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, तो आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट, मींस के यू मे बी आस्क्ड इन एग्जाम, समटाइम्स होता है कि क्वेश्चन ये आता है कि राइट इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस हाउ यू कैन चेंज द डायरेक्शन। मतलब आपने इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस ये बताना है कि आप डायरेक्शन को किस तरह चेंज कर सकते हैं। सो सिंपली किस तरह चेंज करेंगे, बाय अप्लाइंग सम अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपने ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है आपने उस डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स अप्लाई। ठीक हो गया। सो दीज आर द सम इफेक्ट्स ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस। तो दिस इज द समरी जो जो हमने स्टेप्स जो जो इफेक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं फॉर द अनबैलेंस फोर्सेस। ठीक, नाउ वी मूव टू द इफेक्ट्स ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस। मतलब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप बैलेंस फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट क्या होगा। नाउ अगेन रिमेंबर दिस थिंग कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इफेक्ट होता है दैट डिपेंड्स ऑन द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है ना। सो वेरी फर्स्ट इफेक्ट ऑफ द बैलेंस फोर्स इज दैट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट। मतलब ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में है और आप अप्लाई करते हैं उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स, तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, वो रेस्ट होगा। अब ये कैसे होगा, जस्ट कंसीडर दिस ऑब्जेक्ट, आप इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करें 10 न्यूटन। नाउ दिस इज एन अनबैलेंस फोर्स बिकॉज इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो ये अनबैलेंस फोर्स है। तो ये अनबैलेंस फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट करेगी, इट विल मूव दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, बिकॉज अब इस केस में जो रिजल्टेंट आ रहा है नॉन जीरो आ रहा है, तो जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। नाउ कंसीडर कि यही ऑब्जेक्ट है, आप क्या करते हैं साइमल्टेनियसली, ऑब्जेक्ट अभी रेस में है, आपने स्टार्ट में ही क्या कर दिया, दोनों साइड से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर देते। मींस के ऑब्जेक्ट का रेस में था, आपने साइमल्टेनियसली दोनों साइड से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर दी। जब आपने इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर दी, दैट मींस के आपने इस केस में रिजल्टेंट को आपने कर दिया जीरो, बिकॉज दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस केस में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। आपने ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ही उसके रिजल्टेंट को जीरो कर दिया। तो जब आपने ऑब्जेक्ट के रिजल्टेंट को जीरो कर दिया तो ये जीरो रिजल्टेंट ये इंडिकेट कर रहा है कि अब आप, बिकॉज आप जब ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हैं तो एक्चुअली आप कर क्या रहे होते हैं, आप उसकी वेलोसिटी को जीरो से किसी नॉन जीरो वैल्यू पे लेकर, मींस कि अगर ऑब्जेक्ट रेस में उसकी वेलोसिटी जीरो है, जब आप मूव करवाएंगे तो डेफिनेटली इट विल हैव सम नॉन जीरो वेलोसिटी। आपने उसकी वेलोसिटी को चेंज करवाना है फ्रॉम जीरो टू सम नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है ना, लेकिन वेलोसिटी को चेंज करने का मतलब ये है कि आपने उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवानी है, बिकॉज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो आपको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवानी थी, लेकिन एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होती है जब ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट कर रही हो, कोई नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही हो, ओनली देन एक्सेलरेशन कैन बी प्रोड्यूस। लेकिन आपने इस कंडीशन में स्टार्ट में ऑब्जेक्ट की रिजल्टेंट फोर्स को जीरो कर दिया, तो ये जीरो रिजल्टेंट का मतलब ये इट विल नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट,
एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का रिजल्ट ये होगा कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की स्पीड है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो जहां थी वहीं। तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी था, जिसकी स्पीड जीरो थी, इट विल स्टिल रिमेन जीरो, चाहे आप दोनों साइड से कितनी भी फोर्स, आप थाउजेंड न्यूटन भी अप्लाई कर दें, दिस ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक हो गया। अब आते हैं सेकेंड इफेक्ट, which says that moving object will start its motion in a straight line with a constant speed। मतलब ये कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूविंग है, उसके ऊपर आप बैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अब क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगा इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड। देखिए, स्ट्रेट लाइन का मतलब है उसका अब डायरेक्शन भी जो थी वो सेम होगी, अब वो चेंज नहीं होगी, और कांस्टेंट स्पीड का मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। दैट मीन्स कि अब क्या होगा, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इसका मतलब होगा अब वो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। मीन्स कि अगर आपने ऑब्जेक्ट जो कि मूविंग है, आपने उसकी मोशन, ड्यूरिंग इट्स मोशन आपने फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी जो उसकी जो वेलोसिटी है, अब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। अब ये कैसे करेगा, सो लेट्स डिस्कस दिस। अब हम इसको पर्टिकुलर केसेस में डिस्कस करते हैं कि लेट्स अज्यूम अ सिचुएशन कि एक ऑब्जेक्ट है व्हिच स्टार्टेड मूविंग विद सम रिजल्टेंट फोर्स। डेफिनेटली उसको मूव करवाने के लिए कोई रिजल्टेंट फोर्स रिक्वायर्ड होगी, बिकॉज जब तक उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं करेगी वो अपनी स्टेट ही चेंज नहीं करेगा। एट टाइम जीरो क्या होता है, आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, सम नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स, जिससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा। और नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब ये होगा, आपने फॉरवर्ड फोर्स को बैकवर्ड फोर्स से ग्रेटर रखना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग अगेन। फॉर सिंपलिसिटी हम ये अज्यूम करें कि वो स्पीड कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज होगी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे चल के लेट्स से टाइम t1, t1 पे क्या हो रहा है कि ये जो बैकवर्ड फोर्स है, अब वो स्लाइटली ग्रेटर हो जाती है फॉरवर्ड फोर्स से। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही बैकवर्ड फोर्स ग्रेटर होगी, तो अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, मींस के जितनी स्पीड इसने ऑब्टेन की थी एट टाइम t1, तो जैसे ही बैकवर्ड फोर्स ग्रेटर होगी, तो अब इस ऑब्जेक्ट की स्पीड विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, ठीक है ना। एक बात ये, दूसरी बात ये कि देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन द बैकवर्ड फोर्स। तो इस स्लाइट इंक्रीज का मतलब इसमें जो डिसिलरेशन प्रोड्यूस होगी, वो उसका जो रेट ऑफ डिसिलरेशन होगा, मींस उसका जो रेट होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू द रेट ऑफ एक्सेलरेशन, बिकॉज यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो स्लाइट डिफरेंस है, वो स्लाइटली इंक्रीज हो रही है। तो अब क्या होगा, तो उसमें डिसिलरेट, ऑब्जेक्ट डिसिलरेट करना स्टार्ट करेगा, मींस उसकी जो वेलोसिटी जितनी उसने ऑब्टेन की थी स्पीड, अब वो स्पीड दोबारा रिड्यूस होना स्टार्ट होगी। अब अगर देखें, अगर हम इसको कंटिन्यू इस तरह करते जाएं, मींस के इसको कंटिन्यू करें कि अगर बैकवर्ड फोर्स ग्रेटर रही रहेगी, तो ऑब्जेक्ट विल फाइनली रीच टू जीरो। उसके बाद भी हमने डिस्कस कर लिया कि उसके बाद क्या होगा। लेकिन इन दिस केस अब क्या होता है, लेट्स कंसीडर कि t2 क्या है, इट्स अ टाइम जिसपे अभी तक ऑब्जेक्ट ने उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी स्पीड है, वो जीरो नहीं हुई। इसकी स्पीड मैक्सिमम से तो रिड्यूस हो गई, लेकिन स्टिल इट इज हैविंग सम स्पीड। एट टाइम t2 क्या होता है, अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाती है। नाउ दिस इज द केस, ये इससे पहले हमने नहीं डिस्कस किया। देखिए, इससे पहले जितने भी हमने केसेस डिस्कस किए, या तो उसमें फॉरवर्ड फोर्स ग्रेटर थी या बैकवर्ड। हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया, उसमें हमने कहा फॉरवर्ड जो ड्राइविंग फोर्स है वो बैकवर्ड फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है ग्रेटर। सेकंड केस में हमने ये डिस्कस किया कि जो ब्रेक, जहां पे हमने स्टॉप करवाना था, हमने ब्रेकिंग फोर्स को ड्राइविंग फोर्स से ग्रेटर कर दिया। थर्ड केस में हमने जब जनरलाइज किया, तो हमने ये कहा था बैकवर्ड फोर्सेस ग्रेटर देन द फॉरवर्ड। ऑल दोज केसेस हमने ये कंसीडर किया था कि दोनों फोर्सेज जो है उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, एक लार्जर है एक स्मॉलर है। लेकिन अब क्या हो रहा है इस केस में, एट टाइम t2 दोनों फोर्सेस सेम हो जाती हैं, दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि इन फोर्सेस के इक्वल होने से ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब दोनों फोर्सेस इक्वल होने का मतलब ये, अब रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, बिकॉज अब देखिए प्रीवियस केस में जहां पे दो डिफरेंस होगा, देयर विल बी सम नेट रिजल्टेंट फोर्स, कोई नॉन जीरो रिजल्टेंट होगा। बट जैसे ही दोनों फोर्सेस इक्वल हो गई, तो डेफिनेटली अब इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अब इस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, इसकी स्पीड है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब देखें, स्पीड इंक्रीज होती है उस वक्त जब फॉरवर्ड फोर्स ग्रेटर हो, और स्पीड डिक्रीज होती उस वक्त जब बैकवर्ड फोर्स ग्रेटर हो। लेकिन अब क्या हो रहा है, ना तो फॉरवर्ड फोर्स ग्रेटर है, ना ही बैकवर्ड फोर्स ग्रेटर है। इसका मतलब ये होगा, अब स्पीड ना तो इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी,
स्पीड जितनी होगी मीन्स के अगर फॉर एग्जांपल t2 पे लेट से ऑब्जेक्ट की स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड, तो अब क्या होगा, जितनी देर के लिए दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, दोनों फोर्सेस सेम होगी, तो फॉर दैट टाइम इंटरवल अब ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल करता रहेगा, इसकी स्पीड में कोई भी वेरिएशन नहीं है। सो ये वेरिएशन कैसे मीन्स के इस वेरिएशन को हमने कैसे कांस्टेंट किया, जस्ट बाय मेकिंग द फोर्सेस बैलेंस्ड, ठीक है ना। सो दिस इज द इफेक्ट। देखें बैलेंस फोर्सेस क्या कह रहा है इस इफेक्ट, कि अगर आप ड्यूरिंग मोशन, रिमेंबर दिस थिंग, आपने ड्यूरिंग मोशन ये करना है, बिकॉज आप स्टार्ट में करेंगे तो वो फर्स्ट वाला केस होगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा ही, लेकिन अगर ड्यूरिंग मोशन आप रिजल्टेंट फोर्स को बैलेंस कर, मतलब दोनों फोर्सेज या जितनी भी फोर्सेज एक्ट करिए उनको बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस का मतलब उनका रिजल्टेंट जीरो कर देते हैं, तो व्हाट विल हैपन, ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी हमने ये डिस्कस नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में कैसे कंटिन्यू करें, हमने सिर्फ ये पॉइंट डिस्कस किया है कि उसकी स्पीड कैसे कांस्टेंट होगी। सो दिस इज हाउ इट विल, इसकी जो स्पीड है दैट विल बिकम कांस्टेंट, ठीक है, स्पीड तो हो गया, बट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट उसकी वेलोसिटी मींस कि उसमें जो डायरेक्शन है वो भी अब सेम होना चाहिए, उसमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि अब ये कैसे होगा, उसको डायरेक्शन को वो कैसे मेंटेन करेगा, उसमें चेंज होगा। तो देखें जब ये रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गई, सो फ्रॉम दिस फार्मूला ये इंडिकेट करता है, सो अगेन मास में तो कोई भी चेंज नहीं आएगी, इस फोर्सेस को इंक्रीज डिक्रीज करने से मास विल रिमेन सेम। तो अगर ये जीरो रिजल्टेंट फोर्स हो जाती है, तो जीरो रिजल्टेंट का मतलब है अब एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, बिकॉज फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर डायरेक्टली रिलेटेड। जब एक्सेलरेशन जीरो हो गई तो एक्सेलरेशन में दोनों चीजें आ जाती है, एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड के वेरिएशन की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकती है और डायरेक्शन की वेरिएशन की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गई, इसका मतलब ये होगा अब ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, जो कि हमने यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर लिया, ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, बिकॉज डायरेक्शन तब चेंज होगी जब उसके उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करवाने के लिए देयर मस्ट बी सम नॉन जीरो फोर्स एक्टिंग। तो अगर उसके ऊपर जीरो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगी, तो अब ऑब्जेक्ट मूव करेगा इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब अब उसमें जो एक्सेलरेशन भी और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी सेम होगी, और उसकी वेलोसिटी स्पीड होगी वो भी सेम होगी, जितनी देर के लिए दोनों फोर्सेस बैलेंस होगी। फिर जाके अगर फॉर एग्जांपल अनबैलेंस हो जाती है, फिर दोबारा डिपेंडिंग ऑन विच फोर्स इज ग्रेटर, अगर फॉरवर्ड ग्रेटर होगी तो स्पीड दोबारा इंक्रीज करने लगेगी, अगर बैकवर्ड फोर्स इंक्रीज होगी तो स्पीड डिक्रीज करने लगेगी। ठीक हो गया, दिस इज द इफेक्ट। Now, this is the summary of effect of balance forces. So there are only two effects कि object rest में तो वो rest में रहेगा, object move motion में होगा तो it will continue its motion with an zero acceleration, मतलब with a constant velocity. ठीक हो गया। अब हम आते हैं the thing which we confused, जिससे हमने confuse किया था कि अगर object, sorry, now before discussing that, ये जो हमने इफेक्ट ऑफ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस डिस्कस किए, देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स अबाउट दीज इफेक्ट्स। ये जो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के इफेक्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड कुछ फाइंडिंग्स है, वो हम फाइंडिंग्स डिस्कस कर लेते हैं। दे आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इन फाइंडिंग्स को समझ लेते हैं दे विल हेल्प यू आउट थ्रू आउट द सिलेबस, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट जो है थ्रू आउट द सिलेबस किसी ना किसी तरह यूज हो रहे होते हैं। तो क्या क्या फाइंडिंग्स हमने ऑब्टेन किए फ्रॉम दीज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस? फर्स्ट इज दैट ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है दैट कैन ओनली बी चेंज बाय अनबैलेंस फोर्स, ठीक है ना। ये अभी हमने देख लिया कि अगर आप स्टेट चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, कभी भी बैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज नहीं करेगी। देखें जो हमने इफेक्ट डिस्कस किया बैलेंस फोर्सेस के, उनमें ये था ऑब्जेक्ट अगर रेस में तो वो रेस में ही रहेगा, ऑब्जेक्ट अगर मोशन में, सिंपल उसमें चेंज आएगा कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन स्टिल इट विल रिमेन इन मोशन, मतलब उसमें जो स्टेट है वो मोशन से रेस में चेंज नहीं होगी। अगर आपने स्टेट चेंज करवानी है दैट इज ओनली पॉसिबल बाय अप्लाइंग अनबैलेंस्ड फोर्स। सेकंड फाइंडिंग ये, speed of the object can be increased by increasing forward force and it can be decreased by increasing the backward force। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि अगर आपने ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज करना है तो आपको फॉरवर्ड फोर्स इंक्रीज करनी पड़ेगी, इसी तरह अगर आपने स्पीड डिक्रीज करनी है तो आपको बैकवर्ड फोर्स इंक्रीज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट फाइंडिंग इज दैट if backward force increases then object decelerates first। तो ये है कि अगर आप ड्यूरिंग मोशन बैकवर्ड फोर्स को इंक्रीज कर देते हैं तो उसका जो वेरी फर्स्ट इफेक्ट ये होगा कि ऑब्जेक्ट डिसेलरेट करेगा, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली वो बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट कर दे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल डिसेलरेट एंड कम्स टू द रेस्ट, और उसमें जीरो पे पहुंचने के बाद कम्स टू द रेस्ट मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई या उसकी स्पीड जीरो हो गई। जीरो पे आने के बाद इफ यू स्टिल बैकवर्ड फोर्स इज ग्रेटर, मतलब इफ यू
still keep the backward force greater, तो अब क्या होगा, object will start its motion in the backward direction. Next finding is that direction can also be changed only by applying unbalanced force. तो ये भी हमने अभी डिस्कस किया कि डायरेक्शन को भी अगर आपने चेंज करवाना है, सो वो आप तब अप्लाई चेंज करवा सकते हैं अगर आप उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे। बैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे, बैलेंस फोर्स का मतलब ये होगा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, तो जब तक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट फाइंडिंग इज दैट with unbalanced forces या जिसको हम कहते हैं नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्सेस, ऑब्जेक्ट कैन नेवर मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग कि जब आप ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, उसकी स्पीड की विल कीप चेंजिंग। अगर आप फॉरवर्ड को ग्रेटर करेंगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, बैकवर्ड फोर्स को ग्रेटर करेंगे स्पीड डिक्रीज होगी। दोनों कंडीशंस में स्पीड विल चेंज, कभी भी सेम नहीं रहेगी। अगर आप ये चाहते हैं आप ऑब्जेक्ट को एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करवाएं, दैट इज मींस के ओनली पॉसिबल इफ यू अप्लाई अ बैलेंस फोर्स। जब आप ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे ओनली देन यू कैन कीप द स्पीड कांस्टेंट, ठीक है ना। इसी तरह बैलेंस फोर्स जो होती है दे कैन नॉट चेंज द स्पीड, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। सिमिलरली जब आप ऑब्जेक्ट मींस के जब आप बैलेंस फोर्सेस अप्लाई करते हैं ओनली देन ऑब्जेक्ट विल मूव एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। सो अगेन इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कंडीशन इन विच ऑब्जेक्ट कैन मूव एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्या होगी कंडीशन, इफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी बैलेंस। अगर उसके ऊपर बैलेंस फोर्स होंगी ओनली देन ऑब्जेक्ट कैन मूव एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। या फिर आप ये कहें जितनी देर के लिए फोर्सेस बैलेंस होगी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, उसकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी। अगर आपने वेरिएशन लानी है तो आपने फोर्सेस को दोबारा अनबैलेंस करना। So these are the important findings about the force and motion. अब हम आते हैं the remaining part के how it is possible कि ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, बिकॉज कांस्टेंट स्पीड का कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है नो एक्सेलरेशन, देन इज इट पॉसिबल कि वो ऑब्जेक्ट विदाउट फोर्स मूव करे। सो नाउ आई थिंक आई होप कि योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर कि ये जो फोर्स होती है दिस इज नॉट अ अप्लाइड फोर्स बट दिस इज अ रिजल्टेंट फोर्स। मतलब ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है वो डिपेंड कर रही होती है रिजल्टेंट फोर्स पे। तो अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा उसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो एक्ट कर रही है, बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है बैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्सेस का मतलब होता है जीरो रिजल्टेंट फोर्स। तो जीरो रिजल्टेंट फोर्स में एक्सेलरेशन कैन आल्सो बी जीरो। दैट मींस कि दिस इज पॉसिबल, मींस कि हम ये तो नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा विदाउट फोर्स। मींस के ऑब्जेक्ट मूव करवाने के लिए उसको लाजमी कोई ना कोई फोर्स चाहिए होगी, लेकिन जब एक बार उसने अपनी मोशन स्टार्ट कर दी तो अब ड्यूरिंग मोशन आप ये कर सकते हैं कि आप उसकी रिजल्टेंट फोर्स को जीरो करें, इट विल स्टिल कंटिन्यू मोशन बट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नाउ इसमें एक और चीज कि देखें जब आप ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो मोशन स्टार्ट करवाने के लिए आपको अनबैलेंस फोर्स लाजमी अप्लाई करनी पड़ेगी, उसके बगैर ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को स्टार्ट नहीं करेगा। लेकिन ड्यूरिंग इट्स मोशन फिर डिपेंड्स ऑन आप स्पीड को उस फोर्सेस को बैलेंस्ड या फिर अनबैलेंस्ड रख सकते, ठीक है। So this is all about forces and their types. I hope your concepts are clear. If you still feel any difficulty in understanding anything related to this topic या फिर कोई सा भी topic जिसमें आपको clear नहीं है, if you have any ambiguity, any question, you can ask on my WhatsApp number or on my email address. Okay, this is all about this video. See you with the next video very soon. Have a nice day. Allah Hafiz.